Hello students, this is Sumit Jain from Pioneer Group of Schools and we are studying class 9th Mathematics chapter 1 number system. In the previous video I have explained the intro video and introduction about exercise 1.1 and we already discussed the question number 1 and question number 4 along with the examples and different method और different या ये कहें कि दो method to finding the rational numbers between two given rational numbers. The first one method we are explaining in the question number 2, that is find 6 rational numbers between 3 and 4. As you can see there are two numbers 3 and 4 and we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. क्यों मैं 6 को इतनी बार बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट टाइप की जो मेथड है उसमें इस वर्ड से बहुत ज़्यादा लेना देना है. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? ओके, द नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो हमारा वो है 3 है. 3 वी कैन राइट 3 एज 3/1. देयर इज़ नो इशू. वी कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, 3/1 जो कि एक रैशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. हमें इसे री राइट करना है यूजिंग इक्विवेलेंस रैशनल नंबर्स. जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस रैशनल नंबर का, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके. तो 1 के मल्टीप्लाई में क्या लिखना है हमें 1 के मल्टीप्लाई में लिखना है 6 + 1. 6 + 1 दैट इज 7. अब हम डिनोमिनेटर में लिख दें. न्यूमरेटर में अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 7 का, तो ये जो नंबर था 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज. दिस बिकम्स 3/7 और ये था 3, तो 3 and 3/7 इज़ नॉट इक्वल. तो यहाँ पे सब कुछ गलत हो जाएगा इफ़ हम न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई नहीं करते. तो इसलिए हमें 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा. इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा. जो नंबर है 3, उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी. We get 7 3s are 21 upon 1 into 7, that is 7. Similarly for 4, we have 4/1 and we multiply by 6 + 1, 7 in the numerator also. Now we get 7 4s are 28 upon 7. As we have to find the 6 rational numbers between 3 and 4, but 3 we have rewrite as 21/7 and 4 we have rewrite this 28/7 using equivalence rational number concept. Using the concept of equivalence rational number. Now as we have to find 6 rational numbers between 3 and 4, now we will find 6 rational numbers between 21/7 and 28/7 by this 22/7. As the denominator is same, the numerators are 21 and 28, we will write the numbers between 21 and 28 and put 7 as a denominator. By writing this, we get 6 rational numbers between these numbers: 22/7, next 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. These are the 6 rational numbers between 3 and 4. Between 3 and 4. इस टाइप से ये हमारी पहली मेथड थी, जो कि एक बहुत ही आसान मेथड है. इस मेथड को यूज़ करके हम कितने ही रैशनल नंबर हम पता कर सकते हैं. एज यू नो देर आर इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स जो गिवन है उनके बीच में इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, जैसा कि हमने इस मेथड में देखा है. और यहाँ पर हम 6 रैशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं. सेकेंड मेथड का यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए करते हैं. आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, as you can see that find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. जो 3/5 और 4/5 ये जो दो नंबर्स गिवन हैं, गिवन 2 numbers are 3/5
and 4 by 5. We have to find 5 rational numbers between these numbers. हम वो पिछली वाली मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पिछली वाली मेथड भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको बता दूंगा. इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ और 2 रैशनल नंबर मैं पता करके बताता हूँ आपको. बाकी के 3 रैशनल नंबर आप ये मेथड सीख जाओगे, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना. ओके, तो फर्स्ट रैशनल नंबर between 3 by 5 and 4 by 5. We can find that by adding these two numbers and after that divide by 2. By this formula or by this method we can find 1 2 3 4 5 जितने भी चाहें उतने रैशनल नंबर we can find, हम पता कर सकते हैं. तो in the numerator we get LCM 5, in the numerator of 3 plus 4 whole upon 2. On solving this we get 3 plus 4, that is 7 upon 5 2s are 10. This is the first rational number between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 comma 7 by 10 4 by 5. तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में हमारा ये फर्स्ट रैशनल नंबर पता चल चुका है. सेकेंड रैशनल नंबर पता करने के लिए हमें 2 रैशनल नंबर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 में से कोई 2 नंबर हमें यहाँ पे चूज़ करने होंगे. इन दोनों को चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं. इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं या इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं. इन दोनों को चूज़ करते हैं हम. सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 एंड 7 by 10. सेकेंड रैशनल नंबर पता करने के लिए हम किन 2 नंबर्स को ले रहे हैं, 3 by 5 को और 7 by 10 को, बाय यूजिंग दिस फार्मूला अगेन. तो वी एट 3 by 5 एंड 7 by 10 एंड डिवाइड बाय 2. वी गेट LCM 5 और 10 का LCM कितना होगा, 10. 5 डिवाइड्स 10 2 टाइम, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 होल अपॉन 2. On solving we get 6 plus 7, that is 13 upon 10 2s are 20. This is second rational number we get between 3 by 5 and 4 by 5. By rewriting this we get 3 by 5, 13 by 20, 7 by 10, 4 by 5. ओके, तो ये हम 2 रैशनल नंबर पता कर चुके हैं. अब आप इन दोनों के बीच में भी पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी पता कर सकते हैं. ठीक है, इन तीनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप 3 रैशनल नंबर पता कर लेंगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे. आपको आ गया इतना समझ में? तो आप ये कर लोगे. अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करो, पोस्ट करो, समझो क्या करा, क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. ठीक है, आगे होगा इतना समझ में आप लोगों को. चलो मैं इस क्वेश्चन को सेम पुरानी वाली मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ. तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ही है. बाय मेथड 1, 3 by 5 एंड 4 by 5. तो 3 by 5 हमारे पास एक नंबर है और हमें कितने रैशनल नंबर पता करना है, 5 रैशनल नंबर्स पता करना है. तो इधर 1 लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 plus 1 से. 5 plus 1 यानी 6. यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा. 6 3 ज़ा कितना हो गया 18 और 6 5 ज़ा वी गेट 30. सेम फॉर सेकेंड नंबर 4 by 5. वी विल मल्टीप्लाई 5 by 6 in the numerator also. So we get 6 4s are 24 and 6 5s are 30. Now we will find 5 rational numbers between these two numbers, 18 by 30 and 24 by 30. We get 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. So by using this method we can find easily rational numbers between two given rational numbers. Okay, so now we have completed our exercise 1.1.
In the next session, we will learn about irrational numbers. Till stay safe, stay learning. Thank you.